کربلا کا سب سے اونچا علم ایک معصوم ماں کی خاموش رضا تھی۔ محرم وہ سایہ ہے جہاں وفا نیزے کی نوک پر بھی مسکرا رہی تھی۔ حسین علیہ السلام نے سر کٹا کر بتایا کہ سجدہ فقط خدا کے آگے ہوتا ہے، دنیا کے نہیں۔ زینب علیہ السلام کی خاموشی میں وہ طوفان چھپا تھا جو یزید کے تخت کو لرزا گیا۔ کربلا میں صرف خون بہا نہیں، انسانیت کی آبیاری ہوئی۔ کبھی خیمے جلتے ہیں، کبھی لہجے، لیکن جو جل نہ سکے وہ حسین علیہ السلام کی یاد ہے۔ ایک شیر خوار کی پیاس نے وہ تمانچہ مارا جو آج بھی ظالم کے چہرے پر نقش ہے۔ محرم ایک مہینہ نہیں، یہ احساس ہے کہ کون ظالم تھا اور کون مظلوم۔ کربلا کے زخم آج بھی امت کے دل پر تازہ ہیں، مگر ضمیر اب بھی سوئے ہیں۔ کربلا میں راتیں طویل تھیں، مگر زینب علیہ السلام کی ہمت ان سب سے بلند تھی۔ جس دن حسین علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہوا اور وقت نے اپنے آنسو چھپا لیے، حسین علیہ السلام کی لاش خاک پر تھی، مگر پیغام افلاک سے بلند۔ خاک کربلا میں جو مہک ہے وہ کسی عطر سے نہیں، شہیدوں کے لہو سے ہے۔ کربلا نے بتایا کہ جیتنے کے لیے تلوار نہیں، ضمیر کا جاگنا ضروری ہے۔ محرم کا نوحہ وہ پکار ہے جو ہر حق پرست کے دل میں جنم لیتی ہے۔ یزید کے دربار میں زینب علیہ السلام کا سکوت قیامت سے پہلے کی خاموش گرج تھی۔ جب پیاس بھی شہادت بن جائے تو جان لو کہ وہ کربلا ہے۔ کربلا میں صبر رویا نہیں، سینے میں قیامت بن کر ٹھہرا رہا۔ محرم وہ آئینہ ہے جو ہر دور کے یزیدوں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ کربلا میں نیزے بلند ہوئے، مگر حسین کے سجدے نے عرش ہلا دیا۔ محرم وہ آئینہ ہے جس میں ہر ظالم کی بدصورتی اور ہر مظلوم کی روشنی نظر آتی ہے۔ حسین علیہ السلام نے سر کٹایا، لیکن اپنے نانا کے دین پر گرد نہ آنے دی۔ خون بہا زمین پر، مگر خوشبو جنت سے آئی، یہ کربلا تھا۔ زینب علیہ السلام نے قید میں بھی ایسا خطبہ دیا کہ وقت کے یزید لرز اٹھے۔ کربلا کا ہر قطرہ خون باطل کے منہ پر تھپڑ بن کر گرا۔ محرم کے آنسو صدیوں سے بہہ رہے ہیں، کیونکہ کربلا وقت سے ماورا ہے۔ سر نیزے پر بلند ہو تو حق کی گواہی دیتا ہے، یہ حسین علیہ السلام نے سکھایا۔ کربلا وہ درس ہے جہاں خاموشی بھی خطبہ بن گئی۔ جس نے شیر خوار کو بھی قربان کر دیا، وہ صرف باپ نہ تھا، وہ امام تھا۔ کربلا کے خیموں سے جو آنکھیں نم ہوئیں، وہ آج بھی امت کی شرمندگی ہے۔ محرم صرف ماتم نہیں، عہد وفا کی تجدید ہے۔ حسین علیہ السلام نے کربلا میں صرف قربانی نہ دی، بلکہ انسانیت کو جاویدانی بنا دیا۔ یزید جیتا تھا، مگر تاریخ نے صرف حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا۔
ज़ैनब वो चराग है जो करबला की तारीकी में भी जलता रहा। करबला में शिकस्त सिर्फ तलवार की हुई, फतह सिर्फ किरदार की हुई। मुहर्रम का पहला दिन आता है तो दिल रोते हैं, क्योंकि वो काफिला याद आता है जिन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए प्यास बर्दाश्त की, वो जन्नत के पानी के वारिस बने। करबला हमें ये सिखाता है कि हक के लिए तन्हा भी खड़े होना पड़े तो डरना नहीं। ज़ैनब अलैहिस्सलाम की आंखों से बहने वाला हर आंसू वक़्त के फिरौनों पर लानत है। मुहर्रम का इल्म लहरा कर दिलों में चराग जलाया जाता है। जिसने सर कटवा कर भी लबों पर जिक्र खुदा रखा, वही हुसैन था। करबला वो मकाम है जहां वफा ने मौत को भी शिकस्त दी। मुहर्रम का हर दिन हमें बताता है, जुल्म खामोशी से बढ़ता है, सच डटने से जीतता है। खैमे जले, सर कटे, मगर हुसैन की हिम्मत न टूटी। यही तो करबला है। करबला में खंजर भी कांपे होंगे जब शीर ख्वार को देखा होगा। ज़ैनब का सब्र वो पहाड़ है जो हर सदी के जुल्म पर भारी है। मुहर्रम का मातम सिर्फ रोना नहीं, अपनी जात से जुल्म निकालने का अमल है। हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वक़्त का रुख मोड़ गई, दिलों का आयन लिख गई। करबला ने बताया कि सच अगर तन्हा भी हो तो तारीख बन जाता है। हर आशूरा हमें ये याद दिलाता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले न थे, वो हक के साथ थे। मुहर्रम में जो दिल रोए वो दिल अब भी जिंदा है। करबला में आजान रुकी नहीं, सिर्फ मुअज्जन का लहजा बदल गया। यजीद के महल टूटे, मगर ज़ैनब अलैहिस्सलाम की खताबत अब तक गूंजती है। जिस कौम ने हुसैन को पहचान लिया, वो कभी झूठ के सामने न झुकी। करबला के मातम में जो अश्क बहता है, वो रूह को धोता है। हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा जमीन पर था, मगर मर्तबा आसमानों से भी बुलंद। मुहर्रम के दिनों में सिर्फ तारीख नहीं बदलती, दिलों का किबला भी बदलता है। अगर जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी चाहते हो तो मुहर्रम की ये 4 हौसला बख्श बातें हमेशा याद रखो। नंबर 1, हक पर डट जाना ही असल कामयाबी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया नहीं, सच्चाई के लिए कुर्बानी दी। नंबर 2, सब्र कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का सब्र करबला के बाद भी मजलूमों का सहारा बना। नंबर 3, अकेला होना हार नहीं होता। हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा हो गए, मगर उनका मुअक्कफ रहती दुनिया तक जिंदा रहा। नंबर 4, कुर्बानी वही बड़ी है जो दिल से दी जाए। अली असगर अलैहिस्सलाम का खून हमें सिखाता है कि जज्बा नीयत से बड़ा होता है। मुहर्रम सिर्फ गम का महीना नहीं, ये हौसले, हिम्मत और हक पर चलने का रास्ता दिखाता है। करबला वो आह है जिसे हर बातिल सुनता है और कांप जाता है। ज़ैनब अलैहिस्सलाम की खामोशी
यजीद के दरबार को लर्जा गई। ये खामोशी नहीं इनकलाब था। मुहर्रम वो आंसू है जो फकत गम में नहीं वफा की पहचान में बहता है। करबला में जो रुखसत हुआ वो सिर्फ जिस्म से गया, पैगाम से नहीं। मुहर्रम में सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम याद नहीं आते, हम खुद को याद करते हैं कि हम कहां खड़े हैं। करबला के जर्रे जर्रे में कुर्बानी की खुशबू बसी है। कामयाबी अगर सिर्फ तलवार से मिलती तो तारीख यजीद को याद रखती। ये 4 असूल दिल में बिठा लो। नंबर 1, हक के लिए खड़े रहो चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, क्योंकि सच्चाई का अंजाम देर से सही मगर हमेशा बुलंद होता है। नंबर 2, फतह वही है जो ज़मीर मुतमईन रखे, वरना यजीद जीत कर भी हार गया, हुसैन कट कर भी अमर हो गए। नंबर 3, जुल्म की उम्र चंद दिन की होती है, हक की रोशनी हमेशा के लिए चमकती है। नंबर 4, किरदार की ताकत तलवार से बड़ी होती है, तभी तो आज भी हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम दिलों में जिंदा है। जो अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास को समझे वो कभी जुल्म नहीं कर सकता। मुहर्रम का हर दिन दिलों का मुहासबा है, हम हुसैनी हैं या खामोश तमाशाई। करबला सिर्फ नारा नहीं, एक मुस्तकिल दावत है। उठो, जागो और बदल दो। ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने भाई को दफन ना किया मगर उसका पैगाम पूरी दुनिया में फैला दिया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दुनिया को बताया कि सर कट सकता है मगर सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। मुहर्रम का पैगाम सिर्फ आंखों से नहीं पढ़ा जाता, उसे दिल पर उतारा जाता है।